morning, students. Now, I'm going to discuss the question number 16 of the exercise 4.6 of the chapter 4 determinant. This is a word problem, and I'm reading this problem and written down the parameters. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat, and 2 kg rice is rupees 60. This is the first condition. Second one is the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, and 6 kg rice is 90 rupees. And finally, the third condition is the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat, and 3 kg rice is rupees 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. So this is our question number 16 और इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा. We are going to finding out the solution. So first of all, let us try to suppose x, y, and z. Rupees x, rupees y, and rupees z be the price of the price of onion, wheat, and rice. Onion, wheat, and rice per kg respectively. Now, according to the given data, we have the equations. So the पहली condition है, the first condition, 4 kg union, then the cost of 4 kg union is 4x plus 3 kg of wheat is 3y plus 2 kg of rice twice of z is equals to twice of z. Total इनका सबका cost कितना दिया हुआ है. It is given to you rupees 60. Similarly, second condition, the cost of 2 kg onion, that is 2x plus 4 kg of wheat, so it is 4y plus 6 kg of rice, that means 6z, it is equals to given 90 rupees. And the third condition is 6 kg of onion, so the price कितना हो जाएगा 6x plus 2 kg of wheat, so it is 2y, and plus 3 kg of rice, so it is 3 times of z is equals to rupees 70. These are the equations we are forming for this one. So this can be written down in the form of ax equals to b. System की form में लिखेंगे. Then this will be implying that capital A क्या हो जाएगा आपका coefficient matrix, that is the coefficient of x, y, z. तो coefficient of x 2, 4, 2, 6 first column में 4, 2 and 6. Second column y का होगा 3, 4, 2. Then it is 3, 4 and 2. And the third column has the values of z. It is 2, 6 and 3. ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा. और वेरिएबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा. कैपिटल X, it is equals to the value of onion x, wheat y, और राइस की जो वैल्यू है वो z के बराबर हो जाएगी. एंड लास्ट में the value of capital B is equals to, तो ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाता है, लास्ट के अंदर कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, so it is 60, 90 and 70. It is equals to 60, 90 and 70.
Now we are using the inverse method to find the solution of this system of linear equations. So first of all, we finding out the determinant value of this matrix of order 3 cross 3. इसकी determinant value क्या होगी? So determinant of A is equals to, write down the elements. The determinant is 4, 2, 6, 3, 4, 2, and it is 2, 6, and 3. So we are expanding it along R1. R1 के along हम इसको expand कर देते हैं. तो क्या आएगी values? देखो. So this will implying that 4 into 4 3s are 12 minus 12. 12 minus 12. Then we have to written down minus of 3, second element, first row का. Then it is 2 3s are 6, 6 minus 36. ये value होगी हमारे पास 6 minus 36. Then third element है हमारा 2 और first row और third column जाएगा तो ये value 2 to the 4, 4 minus 24. ये values हम लिखेंगे यहाँ पर. It is 4 minus of 24. This will give you 4 into 12 minus 12 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Then minus of 3 into minus of 30. Then plus 2 into minus of 20. Then it is becomes, पहला टर्म तो आपका 0 हो गया. Then माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. It becomes plus of 90 and minus 20 into 2 ये हो जाएगा minus का 40. And finally we are getting the value of this determinant A is equals to 50. इस determinant की value 50 है, which is not equals to 0. That means our A inverses exists. So hence A inverse is exists. A inverse जो है वो हम यहाँ पर find out करेंगे. Now to find the adjoint A, अब हमको क्या करना है? Adjoint find out करना है. So how we can finding out the adjoint A? तो कोफैक्टर सबसे पहले फर्स्ट रो का, तो A11 एंड फॉर कोफैक्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फॉर कोफैक्टर कैपिटल A IJ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, -1 to the power I plus J of M I and J. ठीक है. तो टेक इट इज 1 1 लेंगे. देन पहला साइन क्या आ जाएगा आपका? प्लस का आ जाएगा. और वैल्यू क्या हो जाएगी इसके? 12 minus 12. दिस बिकम्स 12 minus 12 होगा. देन दिस इज इंप्लाइजिंग दैट A11 is equals to A11 is 0. Now A12 is equals to पहले माइनस साइन लगाएंगे. And then we have to written down the value of, here it is 6 minus 36. This will implying that A12 is equals to 30. ये value 30 हो जाएगी. Now A13 पॉजिटिव साइन होगा और फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 to the 4, 4 minus 24, that is equals to 4 minus 24, and this will give you the value of A13 is equals to minus of 24. तो ये आपके पास कोफैक्टर की रो होगी R1. Now A21 इक्वल्स टू, पहले साइन क्या लगा देंगे? इसकी ऑड पावर है तो माइनस. नाउ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 1 2 3 4 एलिमेंट बचेंगे. 3 3 9, 9 minus 4. ये वैल्यू होगी आपके पास 9 minus 4. दैट इज implying that A twice of 1 is equals to
यहाँ 5 होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -5। देन A22 इज इक्वल टू प्लस साइन होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 2 6 3, तो ये एलिमेंट हो जाएगा आपका 4 3 12 माइनस 12, ये भी 0 हो गया आपका। 12 माइनस 12 करेंगे हम इसको, 12 माइनस 12, this will implying that the value of A22 is equals to 0. Now A23 is equals to, तो ये साइन क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 4 3 और 6 और 2 ये बचेंगे, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, और माइनस 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। देन फाइनल वैल्यू ऑफ A23 इज इक्वल्स टू A23 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा माइनस का 10 और ये माइनस है ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये हमारी को फैक्टर की होगी सेकेंड रो। नाउ A31, अब हमारे पास जो थर्ड रो के एलिमेंट तो 31 से स्टार्ट करेंगे, पावर साइन प्लस का होगा। देन दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 6 3 18, 18 माइनस 8, ये वैल्यू होगी हमारे पास 18 माइनस 8, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ A31 इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद A32 साइन होगा, पहले माइनस लगा देंगे ऑड सम की वजह से, और एलिमेंट बचेंगे आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 2 2 6, तो 6 4 24 माइनस 4, ये वैल्यू होगी आपके पास 24 माइनस 4, एंड फाइनल वैल्यू होगी इसकी A32 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20, और लास्ट एलिमेंट हमारा बचा है A33, साइन पॉजिटिव रहेगा, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, थर्ड रो थर्ड कॉलम गॉन, 4 4 16, 16 माइनस 6, ये वैल्यू होगी हमारे पास 16 माइनस 6, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द लास्ट को फैक्टर A33 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास रो है R3, ठीक है। और अब हमको क्या लिखना है, वी हैव टू रिटन डाउन दी एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए लिखना है मुझे, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो R1 जो है इसके एलिमेंट को मैं रो में लिखता हूं, तो पहला एलिमेंट कितना है 0, दूसरा है, सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 30, फिर उसके बाद है -24, तो 0 30 एंड माइनस ऑफ कितना आया था, ये एलिमेंट 24 नहीं होगा, ये एलिमेंट होगा हमारा 20, दिस एलिमेंट इज 20, -24 -24 इट इज 20। तो एडजॉइंट की जो वैल्यू है फर्स्ट कॉलम की, वो होगी, पहला एलिमेंट होगा 0, दूसरा एलिमेंट होगा 30 और माइनस का 20, फिर होगा -5 0 एंड 10, -5, दिस इज -5 0 एंड 10, और थर्ड हो जाएगा 10 -20 एंड 10, 10 10 -20 एंड 10, ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आई। ना अगले स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है हमने, here it is 50, so this can be written down 1 by 50 into
एडजॉइंट के एलिमेंट हैं 0, 30 and -20, then -5, 0 and 10. थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं 10, -20 and 10. Okay, now this will implying that what about the x is equals to a inverse b. तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कैपिटल X की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स है, ये होगा X, Y और Z. दिस बिकम्स दी एंड इट इज इक्वल्स टू A इनवर्स. ये रहा, मैं इसको लिख देता हूँ 1/50 एंड एलिमेंट्स ऑफ 0, 30 एंड -20. फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम के होंगे -5, 0, 10. थर्ड कॉलम है हमारा 10, -20 एंड 10. एंड लास्ट में हम वैल्यू लिखेंगे बी की. बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल बी 60, 90 एंड 70. सो दिस इज 60, दिस इज 90 एंड दिस इज 70. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाता हूँ. हियर इट इज, आई एम मेकिंग द स्पेस हियर टू रिटन डाउन दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ मैं लिखूंगा. तो जो वैल्यू है कैपिटल एक्स, लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पर. तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज एक्स वाई जेड एंड इट इज इक्वल्स टू 1/50. तो बाहर है ही. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. तो 0 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी होगी 0. देन प्लस -5 इज मल्टीप्लाई टू 90. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 5 45. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस की 450. देन प्लस 10 इंटू 70, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 700. फिर सेकेंड के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, इट इज 6 3 18, इट इज 1800. देन 0 इंटू 90, ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी. एंड देन minus of 20 into 70, it is 1400. Third, minus 2 into 20 into 60, minus 1200. फिर 10 into 90 करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 900. और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 10 into 70, that is 700. Okay, then it is equals to 1/50 as it is. And now we have to simplifying this one. 0 minus 450 and 700, total कितना बचेगा 250. Here it is 250. Okay, then 1800 minus 1400, यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी 400. And the last one, it is 1200 and it is 900 and 700 is 1600. 1600 minus 1200, again it is 400. Now if we are to dividing, this is 250 by 50, then the value of x is equals to, x की वैल्यू होगी 5. 400 dividing by 50, we are getting the value of y, that is equals to 8. And again 400 is dividing by 50, this will give you the value of z, that is equals to again 8. So this is the final solution set of x, y and z. That means the price of 1 kg onion is 5 rupees per kg. Wheat is 8 rupees per kg and rice is also 8 rupees per kg. ये हमारा फाइनल आंसर होगा.
तो इस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उनको पहले आपको इस तरीके से इसको इस इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन राइट डाउन दी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू, इसको हम ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे। देन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स जो भी 3 का होगा, and as we seen here the determinant value of the given matrix is not equals to 0, that means the inverse is existing. So and then we have to finding out the cofactors, all the 9 cofactors we have to finding out here, and r1 r2 and r3 इसको हम ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखते हैं। तो एडजॉइंट को क्या लिखते हैं, एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट A is equals to, इस तरीके से आप लिखते हैं aij, और उसका क्या कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया है इसको ट्रांसपोज करके। तो ये रो के एलिमेंट थे 0, 30 एट -20, तो उसको कॉलम में लिखना है, ट्रांसपोज करना है। तो राइट डाउन दी रोज एलिमेंट r1 r2 और r3 के जो कोफैक्टर हैं उनको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एडजॉइंट ए कॉलम में लिख दिया। देन ए इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है, देन x इक्वल्स टू इनवर्स b, एंड सिंपलीफाइंग वी आर गेटिंग दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज all about the solution of question number 16. I hope you will understand. Thank you very much for being watching this video solution of the question number 16 from exercise 4.6. Thank you very much. Thanks a lot.